So, friends, a very exciting session now follows up. We are going to have one of the well-known action director from our film industry, Mr. Vikram Dahiya. He has done quite a few notable films. To begin with, of course, I'll be talking about these things once he comes in order to briefly introduce him. So he worked, more than 50 films so far, and worked with notable directors like Anurag Kashyap. And he's also one of the proud recipient of Filmfare Award for his work in film Mukkebaz. And currently he is involved with Ishan Khattar's Pipa and Salman Khan's next film, Antim. So really this will suit, the test of our youngsters. So stay tuned and please ask your friend to join quickly. You will definitely, um, going to enjoy this particular interaction. And also keep some of the questions, ready because we are keeping it more as an interactive session than a plain seminar kind of thing. Atre sir, I just got the update. Any moment, Mr. Vikram जी joining. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल या So he'll be there in few minutes. हाँ हाँ श्योर 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 And I would request all the students to inform their like friends as well. He's a renowned person, and you must come and join in bulk. Like I could see there are many students who are missing the opportunity. हाँ जी बताइए हेलो वो एक या तो
So friends, I believe this all these sessions which are going on at the moment, you people are having some connection with it, and soon you'll be here in the campus itself. So I'm pretty sure you'll enjoy it more. But this is the only way to connect with us. But you see, good thing about this entire online business is we can call remote people much easier. We can talk to them, and also we can pitch them for our future possible visits. So this is really nice. आप और भी अपने दोस्तों को कहिए कि आ जाएं, बिकॉज हमको रोज रोज तो मौका मिलता नहीं है किसी एक्शन डायरेक्टर जैसे शख्सियत से मिलने का. तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर में आप आइए. और हमारा सेशन इधर फेसबुक पे भी लाइव हो रहा है अभी. तो लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है. आप सीधे अपनी बात रख सकते हैं सेलिब्रिटी के सामने, और they can immediately address to your queries and questions. He is young, so he can connect with the audience very well. बस थोड़ा सा इंतजार और हमारे साथ वो होंगे. माफी चाहता हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया. मैं रजनीश अत्रे हूँ. मैं यहाँ आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स ग्रुप में शामिल हूँ, और फर्स्ट ईयर के बच्चों से सबसे ज्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है. तो each one of you is going to have a dialogue with me at some platform or the other, because we address in first year to each and every entrant of the course. So that would be really a pleasure to talk to you. Of course, we'll talk in much detail as time comes. Please text me. मेरी आवाज और शेयर्ड वाला पोस्टर सारा आपको ठीक ठाक नजर आ रहा है. Please, some of you, please just text and let me know. Yes, sir. Oh, that's great. That's great. Thank you. Thanks very much. Thank you, Harsh. Celebrity's name is Vikram Dahiya. Vikram Dahiya, Ashutosh. He is a young stunt director, really doing good work. I mean, yeah, thank you very much, दिव्य साहब. आपने एक बढ़िया एक छोटा सा उनका ब्रीफ प्रोफाइल अभी टेक्स्ट किया हुआ है, तो वो meanwhile you can go through it.
So, prior to Mr. Vikram, we have one more person, Mr. Danish Siddiqui, जी 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 and he's a like known person to me from Guna. He belongs to Guna, and he's doing great job at. हाँ In fact, Mr. Vikram Dhaya has joined. He ओह has अच्छा joined. अच्छा अच्छा Welcome, sir. Welcome. You're not audible, sir. Your mic is on mute. Sir, your mic is on mute. दया सर My? आपका माइक Yeah, म्यूट yeah. पर है हाँ हाँ yeah now it's audible. So we will start with your introduction, brief introduction, sir, and Dr. Atre will introduce you, and then we can move ahead with the interaction. इसके बाद- दानिश जी को भी तो Yes. इंट्रोड्यूस करा दो। जी जी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया यू नो दानिश सर, दानिश जी एक्चुअली मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स में से हैं, एंड ही इज लाइक प्राउड फॉर आवर गुना, एंड one of my junior as well, and Danish ji is working like really great in the industry and in connecting with the people. दानिश जी एक बार आप आकर थोड़ा सा अपने बच्चों से एक बार इंटरेक्ट करें, देन विल स्टार्ट विद द इंटरेक्शन ऑफ दैया सर. दानिश जी, आर यू देयर? Sir, for introducing me. मतलब इतना कुछ नहीं किया है, बट हाँ थोड़ा बहुत जो किया है वो सब आप लोगों को पता है. एंड जेपी यूनिवर्सिटी से मेरा काफ़ी पुराना एसोसिएशन रहा है शुरू से ही. इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years आई हैव बीन वर्किंग विद देम. ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, बट अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग यू एंड सम अदर फैकल्टी नो मी. 2 साल 2.5 साल पहले द लोकल ट्रेन हम लोग लेके आए. उससे पहले भी काफ़ी जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते थे हम लोग ही लेके आते थे. एंड आई थिंक शुरुआत ही हमने की थी जेपी यूनिवर्सिटी में, जो फेस्ट से जो सेलिब्रिटीज़ आने का था. तो आई थिंक नॉट वेस्टिंग मच टाइम, विक्रम सर इज़ हियर. उनका बहुत कीमती टाइम है, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि विक्रम सर ने हमें टाइम दिया यहाँ आने के लिए, क्योंकि मुझे पता है उनका शेड्यूल कितना टाइट है, कितना ज़्यादा बिजी हैं वो शूटिंग में. और आई थिंक आई डोंट नो, मे बी शायद सेट से ही बात कर रहे हैं वो. सो आई थिंक सर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनसे बात कर लेते. देखिए वो बता रहे हैं. He's in the middle of something. यस आत्रे सर. जी 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 बिल्कुल. सो ये बहुत ही बढ़िया मुबारक मौका है हमारे पास कि आज हमारे बीच विक्रम दाहिया साहब हैं. और वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सब लोगों के सामने पढ़ देता हूँ. बॉलीवुड में लगभग उनका ऑफ कोर्स वो आते हरियाणा से हैं, और लगभग उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में अभी तक काम कर चुके हैं. और एक्शन डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जिसके लिए उन्हें 2019 के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है. जो फिल्म अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने की थी. फिलहाल उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ईशान खट्टर के अभी आने वाली फिल्म पीपा और सलमान खान की अंतिम में है. तो अब और भी ज्यादा उनके बारे में हम सीधे इस इंटरेक्शन में पूछेंगे. थैंक यू वेरी मच विक्रम साहब, आपका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी में, और उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन. Hello. Can you hear me? या नमस्ते विक्रम साहब. Yeah, hi sir. हाय हाय. glad to have you here. या जी Hi sir. Can you hear me now? जी जी हेलो या यू आर ऑडिबल विक्रम जी. या नो प्रॉब्लम. Yeah. Okay. Yeah sir. Tell हाँ me. तो जी बातचीत की शुरुआत हम करते हैं. आप अपने थोड़ा बचपन के बारे में बताइए कि आपका कैसे, कहाँ पे आप पल बढ़ रहे थे और कैसे आपका ये सब शुरू हुआ. जस्ट टू ब्रिंग दी कंटिन्यूटी, थोड़ी सी उसमें सातत्य बन जाए हमारी बातचीत में, इसलिए बताएं तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा. प्लीज. Hi everyone. If you can see me. Hello. Hi everyone. Hi, sir. Hello. Yes, sir. Hi. Good to hear you all, and hope all are well. It's pandemic mein, and I'm shooting right now, so I'm on the set, so you can see. तो मेरा बचपन सर बहुत ही एडवेंचरस रहा है हमेशा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा हूँ और क्लास में थोड़ा कम रहा हूँ.
तो मुझे बचपन से ही शौक था कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैं स्कूल के लिए प्रेजेंट करता था थिएटर, उसमें लिखता भी था, कहानियाँ लिखता था और फिर मैं एनुअल डे पे उनको प्रेजेंट करता था। तो काफ़ी क्राइम वाली कहानियाँ होती थी और प्यार वाली होती थी। तो बचपन से मेरा लगाव रहा है इस फील्ड में, क्योंकि मुझे पहले से ही हीरो बनना था। और साइड बाई साइड में स्कूल से ही और कॉलेज से मेरा मार्शल आर्ट करियर मेरा साइड बाई साइड मेरा ऑन था। तो मुशक्कतें तो बहुत आई, बहुत चोटें लगी मुझे। और देख रहे हो आप यहाँ पे मेरा ये Yes, निशान yes. भी है फेस के पास। तो मैं बहुत ब्लीड भी हुआ है, बहुत कुछ मार लगी भी है मार्शल आर्ट में बेल्ट पाने के लिए, ब्लैक बेल्ट पाने के लिए। तो बहुत तो कुछ खोया है। और फिर ऐसा है कि मेरा जो बचपन रहा है वो बहुत ही थोड़ा सा गरीबी में रहा है, कि पता नहीं था कि कहाँ इन्वेस्ट ये करे मेरे डैड मेरे ऊपर। तो पैसे नहीं थे, तो मुझे ही खुद देखना था। तो बचपन से ऐसा लगा कि यार कुछ है तो नहीं, हम क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे क्या बनेंगे। तो उतना पैसा था नहीं। और मेरा शौक था वो साइंस में बहुत था। मैं अगर कुछ भी पढ़ता था तो मुझे बहुत जल्दी याद होता था साइंस। और मैं क्लास में 7th स्टैंडर्ड तक मैं फर्स्ट आता था। उसके बाद में जो इंटरेस्ट मेरा इस लाइन में आया है एज एन एक्टर बनने के लिए, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। तो मैंने बचपन में मेरे डैड को कह दिया था, डैड मुझे हीरो बनना है। और फिर उसके लिए पहले मार खाई कि कोई था नहीं इस इंडस्ट्री में। तो बोले नहीं 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 ऐसा मत कर, बोला नहीं 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 मैं ऐसे ही करूँगा। तो बहुत गालियाँ खाई है। तो मैं थिएटर करता था तो बहुत ही अप्रिसिएशन मिला मुझे स्कूल से, फिर कॉलेज से भी मुझे बहुत कुछ मिला। एक जो फेस्टिवल में फिर पृथ्वी थिएटर पे मैंने बहुत सारे प्लेस किए। और इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस पे जाके हम नाटक करते थे, स्ट्रीट प्ले करते थे। तो ये बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं बालाजी के लिए ऑडिशन दिया था ऑल इंडिया, तो उसमें सेलेक्ट भी हुआ था एज एन सेकंड लीड एक्टर। लेकिन मुझे सीरियल्स करने नहीं थे, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं अपने एक्शन करियर में आ गया, क्योंकि मैं एक्शन जानता था। तो किसी ने मुझे कहा कि सर आप ये एक्शन कर सकते हो क्या? बोला यार ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला आप तो अपना ऑडिशन भेजिए। तो मरीन ड्राइव है बॉम्बे में, जो कि एक डेड एंड रोड है मरीन ड्राइव पे। तो वो होंडा का एड फिल्म था। तो वहां से मेरा करियर एक्शन में स्टार्ट हुआ। तो उनको एक कार्टव्हील करके जाना था स्ट्रेट। अगर मैं राइट भी गया लेफ्ट भी गया तो सीधा समंदर में गिरूंगा। तो वैसे बहुत से ऑडिशन ले रहे थे, तो मुझे देखा मैं किक पिक कर रहा था बीच पे। तो उन्होंने कहा कि आप करोगे क्या सर? तो बोला हाँ जरूर करूंगा। तो मैंने वो करके दिखाया, मैं पानी तक एकदम स्ट्रेट लाइन में गया। तो मुझे एक्शन डायरेक्टर के असिस्टेंट थे दूसरे, उन्होंने कहा अरे पाजी मिल गया, मुंडा मिल गया, मुंडा मिल गया। Yeah. तो वहां से फिर मेरा करियर स्टार्ट हुआ। तो वो एड में मैंने ही किया है सारा स्टंट, कोई उसमें मतलब एक्टर ने कुछ किया ही नहीं है उसके अंदर। तो वहां से फिर मेरा करियर स्टार्ट हुआ। मैंने सब बड़े एक्टर्स के स्टंट डबल किए, शाहरुख खान से, आमिर खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, अजय देवगन, इमरान हाशमी। कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसको मैंने आज तक छोड़ा हो उनके साथ नहीं। तो मुझे बहुत प्यार करते हैं इंडस्ट्री वाले अभी, क्योंकि जिस लेवल पे मैंने इतने नेक्स्ट लेवल के स्टंट्स किए हैं सारे रियल और वेरी डेंजरस स्टंट्स। उसमें एक बार मेरा पैर भी टूट गया था। मतलब ऐसा आगे का पैर पीछे आ गया था। बापा। थोड़ा डिस्कनेक्टिविटी है कहीं पे। या कुछ बड़ा रिस्की मामला था वो। Yeah, लेकिन बट अभी विद गॉड ग्रेस सब कुछ सही है। एंड जी। तो एक्शन डायरेक्टर बनने से पहले आपने किन किन टाइप की एक्शंस की फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी? मतलब जैसे कराटे एक आपका है, जूडो है, ऐसे और कुछ अलग अलग टाइप के जो स्टंट्स होते हैं? या सर मैंने मार्शल आर्ट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो एक्शन डायरेक्टर्स सिखाते हैं। वो टेक्निकल के लिए बहुत ही वर्ल्ड कैमरे के लिए भी, अगर आप बहुत जन होते हैं जो कैमरा फेसिंग नहीं आ रही उनको, वो सब हमको करना पड़ता है। तो क्योंकि तो ये कैमरे सारा बॉम्बे में किया आपने, अपने टाउन में किया? ये जो ट्रेनिंग ये सारा आपकी बॉम्बे में ही किया है सर। बॉम्बे आने के बाद में किया? हाँ, बॉम्बे ओके ओके। क्योंकि वो लोग का ट्रेनिंग ही प्रोसेस अलग होता है, इसीलिए आजकल इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे खुल गए हैं जहाँ पे लोग सीख सकें। लेकिन जो बारीकी होती है कैमरे के सामने की, वो सबको समझ में नहीं आती है। वो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में आके ही समझ में आती है। बहुत जन लंदन से सीख के आते हैं, कोई यूएस से सीख के आ रहा है, कोई एक्टिंग यूएस से सीख के आ रहा है। बट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अगर आप एक्टिंग करोगे तो वो बहुत ही अलग और फेक दिखती है। तो वो नेचुरलिटी लाने के लिए, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं अभी, तो वैसा फील और वैसा फ्रीनेस कैमरे के सामने नहीं होता। तो कैमरा देखते ही लोगों की मतलब ऐसे डर जाते हैं, स्कैर्ड हो जाते हैं। अरे यार कैसे बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो डायलॉग थे वो याद नहीं हो रहे।
तो बाकी लेकिन- सारी चीजें जी जी। भूल जाते हैं। लेकिन चूंकि आप पहले थिएटर से भी जुड़े हुए थे, तो शायद कैमरे को फेस करना उतना मुश्किल नहीं रहा होगा आपके लिए। I mean, या पहले तो बहुत ही ऐसा लगता था कि अभी कैमरा आ गया, मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट आप जब जैसे कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जी जी एग्जाम में अगर हमको आंसर आता है तो हम लोग बेझिझक लिखते भी हैं। जी जी। अगर जो पढ़ के नहीं जाता है और बाद में वो देखता बता यार मैंने ये देखा था ये क्वेश्चन मेरी बुक में, लेकिन साला याद नहीं है, तो वो बेझिझक सी आ जाती है हम्म कि अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, सही तो नहीं लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ। हम्म तो वैसे यहाँ होता है, अगर कैमरे के पहले हमने अगर वो किया होता है, जैसे मैंने स्ट्रीट पे किए हैं, तो वो दिल खुला हुआ होता है। हम्म तो हम डायलॉग तो बोलते हैं, लेकिन सिर्फ कैमरा थोड़ा सा इधर उधर भटक जाए ना, तो थोड़ा सा वो ट्रेनिंग चाहिए होती है उसके अंदर। हम्म। तो वो हम लोग को बस थोड़ा सीखना पड़ता है उसमें, तो वो सीखने के बाद एकदम फ्लुएंटली आप डायलॉग बोल सकते हो, क्योंकि वो पहले आपने प्रैक्टिस किए, तो जैसे मैंने थिएटर्स बहुत किया है, तो डायलॉग्स में एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन काफी लोग ऐसे उठ के आ जाते हैं, बोलते हैं हमको यार एक्टिंग करनी है, हीरो बनना है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। जी 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 जी। बड़ा एक वो बहुत ही डार्क और बड़ा अलग तरीके के स्ट्रगल वाला फेज है ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, जिसको फेम आने के बाद में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो बड़ा मतलब हाँ, दैट्स अ हार्श रियलिटी। मेरी सबसे पहली पिक्चर थी जिसमें मैंने एक्टिंग की थी, वो थी चक दे इंडिया। हाँ हाँ जब मैं कॉलेज में था, अगर आप वो पिक्चर वापस देखेंगे तो एक मैकडोनल्ड का सीन है जहाँ पे मैं लड़की को सबसे पहले छेड़ता हूँ। हाँ हाँ यस तो वो सीन से मैं बहुत फेमस हुआ था। जी 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 फिर काफी मैंने एड फिल्म्स की, शॉर्ट फिल्म्स की, और काफी पिक्चरों में भी छोटा छोटा रोल किया है। जी जी जी। तो वैसा है। तो अभी मुझे एक फिल्म के रोल बहुत बड़ा ऑफर मिला था जिसका नाम था मोबाइल चोर। हाँ हाँ तो मैं जस्ट एक्शन डायरेक्टर बना था, तो मैं काफी बिजी था। तो विक्रमादित्य मोटवाने, अनुराग कश्यप, इन सबकी पिक्चरें कर रहा था मैं। जी जी जी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार एक पिक्चर है मोबाइल चोर करके, तो उसमें कोई डायरेक्टर है मेरा दोस्त, वो एक ऐसे लड़के को देख रहा है जो सब एक्शन जानता हो और एक्टिंग भी अच्छी करता हो। तो उसने मुझे रिकमेंड किया उस डायरेक्टर को, तो उसने बोला कि ठीक है, वो भेज दो, मैं देखता हूँ। तो उसने मेरा ऑडिशन लिया, ऑडिशन लेते ही बोला कि नहीं मुझे यही चाहिए क्योंकि उसमें ऐसे ट्रेन सीक्वेंस थे, ट्रेन पे भागना, वहां से छपरे पे चढ़ना, ट्रेन से उतर जाना, चलती ट्रेन से मोबाइल लेके, काफी सारी चीजें थी, झोपड़पट्टी में भागना वागना एक एक शॉट्स में। तो अब वो हो नहीं पाई क्योंकि मैं कुछ ज्यादा बिजी था बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ। जी 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 जी। तो सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगर 2 साल रुकोगे, 2 साल तक मैं खुद बिजी हूँ। फिर उसके बाद वो भी अपॉर्चुनिटी मेरी चली गई, लेकिन पिक्चर अभी तक बनी नहीं है। जी 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 जी। एज ए एक्शन डायरेक्टर आप जब कोई इस प्रोफेशन में है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो पुराने जमाने के एक्शन डायरेक्टर थे, उनमें से किन किन से आप इन्फ्लुएंस हैं, मतलब क्योंकि इन्फ्लुएंस देखिए कहीं ना कहीं रहता है, कहीं ना कहीं आप अपनी इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं वहां से। तो जी जी, ऐसा कुछ हो तो आप बताएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे गुरु देवगन जी रहे हैं, अजय देवगन जी के डैडी। गुरु तो देवगन, क्योंकि वो टाइम पे बड़े हिट और बड़े मशहूर एक्शन डायरेक्टर रहे हैं वो अपने टाइम पे। फिर उनके बेटे जो थे अजय देवगन, वो भी एक्टर बने। जी जी जी। उन्होंने खुद पूरे एक्शन में मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ली थी अजय देवगन जी ने। तो मैं उनसे मिला हूँ, और अजय देवगन मुझे बहुत प्यार भी करते हैं क्योंकि मैं इस तरह का उस लेवल का एक्शन करता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में मैंने किया है उनका पूरा स्टंट डबल अजय देवगन जी का, काफी मूवी में किया है। तो बड़े खुश होते हैं मुझे देख के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे इंस्पिरेशन लेके कि एक एक्शन डायरेक्टर का लड़का एक्टर बना है। मतलब फर्स्ट टाइम था जो ऐसा हुआ है। जी जी। उसके बाद फिर विकी कौशल बने, अभी उनके डैड भी एक्शन डायरेक्टर रहे हैं। तो उन सबका जो सोच था वो अच्छा था, लेकिन मेरा एक्टर बनने का सोच ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे पास बैकअप नहीं है। क्योंकि बैकअप रहे इंडस्ट्री में आज की डेट में तो बड़ा मतलब इजी हो जाता है, वरना एक ब्रेक के लिए लोग तरसते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ जैसे भी कैसे भी यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरे लिए बहुत लकी रहा हूँ मैं, क्योंकि इस फील्ड में लोगों को चांस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और अपनी कला को दिखाना बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई लोग पागल हो जाते हैं, मैंने देखा है। मेरे टाइम के जो मेरे दोस्त था एक, वो एक्टिंग करने आया था बेचारा, वो खुद मेंटली पागल हो गया क्योंकि चांस मिलता नहीं है, तो वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन अपने आप को इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, उसने छोड़ दिया अपने आप को। देखिए जी जी, इतना प्रेशर वाला जो ये प्रोफेशन है, इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, इतनी डेडलाइंस को आपको मिलना होता है, आप अपने आप को कैसे इसमें इन सब में अपना कैसे बैलेंस बना के आप रखते हैं? मतलब ये वो बात है जो हम लोग को हमारे प्रोफेशन में कभी नहीं हमको इस तरीके से देखने को मिलती है। इसलिए मैं मतलब आपसे ये सवाल कर रहा हूँ
सर यहाँ पे देखिए अपने आपको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, फिटनेस बहुत जरूरी है, जी क्योंकि अगर आपने वो सब चीजें खो दी तो कोई जल्दी पूछता नहीं है आपको। जी जी क्योंकि यहाँ पे काम जो है हमको कैमरे के सामने करना पड़ता है। जी जी। बैक ऑफ कैमरा ठीक है, बैक ऑफ कैमरा जो करते हैं हम्म बहुत से कैमरे पे अटेंड करते हैं, कोई जिम जिप होता है, कोई स्टडी कैम होता है, हम्म तो वो सब मामला थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लेकिन हम्म। जिनको कैमरे के सामने आना होता है उनको बहुत फिट रहना पड़ता है। एक्टर लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो इतना बड़ा एक्टर बन गया, लेकिन नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। हर रोज 4 बजे उठो, अपना शेड्यूल टाइम टू टाइम करो, खाना प्रॉपर खाना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, हमारे डायलॉग्स है, टीचर्स आते हैं, वो प्रॉपर करना है। जैसे मैं भी अपना जिमिंग टाइमिंग मेरा 5 बजे से स्टार्ट कर देता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं बीच पे जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, पूरी एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, फिर वापस घर पे आता हूँ, फिर शूट पे जाता हूँ, फिर रात का पता नहीं कब आऊँ। तो वो स्पैन ऑफ टाइमिंग बहुत कम होता है हमारी लाइफ में सोने का भी, तो वो एक आदत होती है। इंसान अगर आदत वो डालेगा नहीं तो वो हैबिट कैन नॉट बी चेंज। ऐसा लिखा हुआ है किसी ने, हैबिट कैन नॉट बी चेंज। अगर हैबिट आपने डाल ली तो दैट कैन नॉट बी चेंज। तो वो हैबिट डालनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो अगर आपको पढ़ना है, इस फील्ड में जाना है, तो उस चीज की आपको पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। तो एक आपका टाइम ऑफ फंक्शन प्रॉपर करना पड़ेगा, तब वो अचीवमेंट आपको मिलती है। तो सारे बच्चों में यही कहूंगा कि प्लीज आप लोग जितने भी हैं आजकल फिजिकल एक्टिविटीज रखिए अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेंटल आपको बहुत ही स्ट्रांग रखता है, क्योंकि आपका माइंड डेवलप करती है वो चीजें, बहुत आपको स्ट्रांग बनाता है। इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम एंड बोल रहे कि मैं योगा कर लूँ थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट, तो उससे कुछ होता नहीं है। बॉडी के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती है जिनको एक्टिव रखना पड़ता है। अगर मैं अपना हाथ से रोज ऐसे चलाता हूँ तो मेरी उंगलियां रोज चलती हैं प्रॉपर, लेकिन मेरा शोल्डर नहीं चल रहा है, लेकिन आपके लिए उसको शोल्डर को एक्सरसाइज करनी पड़ती है, गर्दन की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो आप पूरा दिन फिट रहते हो, कैसे भी आप रहो, और आपका बॉडीली फंक्शन बहुत अच्छा रहता है। और मेंटली जो आप पढ़ाई करते हो उस चीज के लिए आपको एक्सरसाइज, रोज सुबह उठना, ये सब आपकी डेली रूटीन में आप डालोगे तो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि मैं जैसे सुबह उठ के आता हूँ तो मेरा दिमाग बहुत तेज चलना चालू करता है सेट पे। अगर मैं कुछ डायरेक्टर ने बोला कुछ मेरा सीन है तो वो फटाफट कैचअप होता है मेरे दिमाग में। जी जी ये वो सारी चीजें जो है आपको आपकी जो लाइफ है वो इस एक्टिविटी से बहुत ज्यादा जल्दी जोड़ती है। और जी जी जो भी आप याद करते हो वो चीज बहुत जल्दी दिमाग में बैठती है, क्योंकि वो आपके ब्रेन को बहुत फ्रेश रखता है। जी जी सबको लगता है कि ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स वालों के लिए है, लेकिन नहीं, मैं कहूँगा ये सबके लिए होना चाहिए, जितने भी हैं, जी बूढ़े से लेके छोटे बच्चे तक। एक्सरसाइज पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, ताकि आपका पूरा बॉडी फंक्शन, माइंड, आपकी हर चीज एकदम खूबसूरत रहेगी, जी जी और आप जवान भी ज्यादा दिखोगे। जी जी जी। एक बस छोटा सा एक और सवाल मैं दूंगा यहाँ पे। देखिए, इंजीनियरिंग जो प्रोफेशन है बड़ा वर्सेटाइल प्रोफेशन होता है। बच्चे लोग इंजीनियर होते हैं और बाद में बिल्कुल अनयूजुअल फील्ड्स में स्विच ओवर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ के खुद के पुराने बच्चे हैं, वो भी बॉलीवुड में कंपोजर है, राघव अर्जुन, कई एड में का, बॉलीवुड में भी उनका फिल्मों में करते हैं। तो जो प्रॉपर चैनल से यदि कोई इंजीनियर फिल्मों में अपना करियर ढूंढता है, तो कितना पॉसिबिलिटी क्या है उसमें? एज एन इनसाइडर आप क्या बता सकते हैं? सर देखिए, मैंने पिक्चर की थी मुक्काबाज, उसमें एक विनीत करके एक्टर है, जी। वो भी डॉक्टर है। ओहो ओहो। लेकिन डॉक्टर के साथ साथ उन्होंने अपनी जो करियर ऑफ स्पैन में जो दिया है थोड़ा थोड़ा टाइम उन्होंने, जी। वो एक्टिंग के लिए भी दिया है। तो आप अगर उनकी एक्टिंग देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत और उम्दा है। हम्म। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर एक्टर नहीं बन सकता, या डॉक्टर एक्टर नहीं बन सकता, जी जी या फिर पायलट एक्टर नहीं बन सकता। जी अगर आप में वो खूबी है, जी देखिए एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो भगवान पता नहीं कैसे ना कैसे उसके अंदर पैदा करता है। जी 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 तो अगर वो उसके अंदर है तो वो जरूर अपना किस्मत आके आजमा सकता है। जी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बन ही जाएगा, जी जी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट लेकिन उसको आना और उस चीज को समझना, उसके अंदर टाइम देना बहुत जरूरी है। जैसे आप डॉक्टर बनने जाते हो या पायलट बनने जाता है तो उसके लिए एक ट्रेनिंग होती है, ऑफ कोर्स। प्लेन उड़ाने के लिए भी एक ट्रेनिंग होती है। हाँ उसके हाँ। बाद भी को पायलट होता है, वो फिर 5 साल को पायलटिंग करता है, उसके जी बाद जी उसके हाथ में जमानत आती है, वो प्लेन उतारेगा अभी, या तो टेक ऑफ करेगा, जी जी लैंडिंग करेगा। तो वैसी चीजें अगर इंजीनियर्स को भी अगर इसमें दिलचस्पी है तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि आप लोग पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी खूबसूरती से पढ़िए, ताकि आपका बैकअप रहे। जी और जो उनको एक्टिंग करनी है तो प्लीज एक्टिंग करके ही यहाँ आए, जी क्योंकि जी एमएससी स्कूल्स हैं तो उसमें 2 साल आपको देना पड़ता है। जी क्योंकि कई इंजीनियर्स मैंने भी देखे हैं, मैंने भी डॉक्टर्स देखे हैं, बहुत लोग आते हैं लेकिन वो लोग सिर्फ इंजीनियरिंग करके आ जाते हैं, जी जी जी। लेकिन बाकी का उनको पता नहीं करना क्या है। हाँ
आते हैं, फिर ऑडिशन देना स्टार्ट करते हैं, फिर वहाँ एक्टिंग प्रॉपर होती नहीं है। सेट पे अगर चले गए, चलो किसी ने अगर आपको दे भी दिया ये रोल तू कर ले, छोटा मोटा कर लो, तो उसमें भी अगर वो मार्क नहीं छोड़ा छोटे रोल पे भी, तो फिर आगे वो प्रॉब्लम होती है। फिर वही मेंटल सिकनेस आ जाती है लोगों में, अरे यार मैं कर नहीं पाया, अब क्या करूँ क्या करूं? मैंने बहुत लोग को ऐसा देखा है कि काफी लोग ऐसे आते हैं और डायरेक्ट अगर आप किसी को डॉक्टर बना दो बिना पढ़ाई किए, तो वो जैसे मुन्ना भाई ऐसा हाथ कांपने लगेगा उसका, कैसे काटूं इसको, क्या करूं कैसे ऑपरेट करूं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी पढ़ाई या तो इंजीनियरिंग की पूरी करके आ रहे हो तो एक्टिंग की पढ़ाई करके आइए। मैं लोगों को यही समझाता हूँ, अगर मुझे सेट पे कोई मिलता है उसको नहीं आ रहा है तो मैं पूछता हूँ तो आपने किया क्या है, तो बताते सर मैंने ऐसा किया है। उसके बाद क्या किया, एक्टिंग में कुछ किया? बोलते नहीं सर ऐसे ही आ गए, हमको शौक है करने का। बोला ये शौक से, ये शौक देखो अभी आपको मार रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो। मैं वहाँ पे सेट पे भी बहुत से लोगों को ऐसे समझाया है मैंने, तो वो लोग ने मेरी जो मैंने समझाया उन्होंने वापस वो चीज़ की है, तो काफ़ी उनको बेनिफिट मिला है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अगर आप लोग को एक्टिंग में करियर में आना है, इंडस्ट्री में आना है, चाहे कोई भी फील्ड में आना है, कैमरा करियर में आना है, कैमरामैन बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो आप लोग के लिए एक कोर्स होता है, वो कोर्स कीजिए ताकि आप लोग सेट पे आके नर्वस ना हो, थोड़ा शाय फील ना करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकली आपको सीखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं सीखोगे तो फिर वो आपका जितना भी टाइम होगा वो वेस्ट हो जाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे फिर मैं वापस इंजीनियरिंग में जाऊँ तो आपका वो इंजीनियरिंग भी वेस्ट हो जाएगा। फिर आपको भी वो स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो मेरी आप लोगों के लिए यही सलाह है प्लीज़ कि आप लोग को अगर कुछ भी करना है इंडस्ट्री में तो आप एक कोर्स कीजिए। जिस फील्ड में भी आपको आना है, अगर एक्शन में भी आना है तो उसका भी कोर्स होता है, आपको मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा। काफ़ी लोग हैं जो खाली बैक फ्लिप मारते हैं, थोड़ा एक दो किक तो कहते हैं हमको स्टंटमैन बनना है, लेकिन नहीं, उसके लिए पूरा बॉडीली परफेक्ट बनना पड़ता है। जी जी तो आजकल तो बहुत कुछ प्रिकॉशंस आ गए हैं, किसी को मार लगती नहीं है, हम लोग बहुत सारी सेफ्टी रखते हैं, तो ज़्यादा इतनी इंजरीज नहीं होती हैं लोगों को। तो एक्शन का करियर भी बहुत अच्छा है, बहुत पैसे अच्छे कमाते हैं लोग। जैसे कि मैं, अगर मैं तारीफ नहीं करूँगा मेरी, लेकिन मैं इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट से ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। तो मुझे लगा नहीं था कि मेरे डैड को नहीं लगा था कि बेटा मेरा करेगा क्या एक्शन में, क्या पैसे कमाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में पैसे कम ही मिलते हैं। और आज मैं इतने बड़े अच्छे लेवल पे हूँ और मैं जो फीस कोट करता हूँ मुझे मिल जाती है भगवान वहाँ से। मतलब वो आपका गुड लक समझ लो या फिर मेरी मेहनत समझ लो। मैं तो सारा श्रेय मेरे भगवान जी को, मेरे माँ बाप को देता हूँ जो मुझे रोका नहीं कि यही करना है, मुझे फ्री छोड़ा था। तो मेरा माइंड उस चीज़ में इतना अच्छा वर्क किया कि आज मैं यहाँ पर हूँ। यस सर। सर दिग्विजय दिस साइड, एक क्वेश्चन हम पुट अप करना चाहेंगे कि लाइक या सर, आपके जो स्टंट्स होते हैं उसके पीछे देयर मस्ट बी सम इंजीनियरिंग माइंड बिहाइंड। आप इंजीनियर्स वहां पर भी रोल होता होगा, तो या सर, तो मैं एक वो तरह का इंजीनियर किस तरीके से क्योंकि बिना इंजीनियर के माइंड के आप कोई एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इतनी टेक्नोलॉजी की होती है, कैमरा से लेके एंगल से लेके, और उस शॉट को चीट करना है ताकि हम उसको रियल भी करें और रियल भी दिखे और किसी को चोट भी ना लगे। हम सारा काम असली करते हैं इसके अंदर। अगर गाड़ी भी पलटी करनी होती है, अगर कार क्रैश होता है, तो वो सारी चीजें हम रियल करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक इंजीनियरिंग माइंड होता है कि गाड़ी को हम पलटी कैसे करें। तो उसके लिए एक रैंप लगता है, तो रैंप को डिग्री में बनाना पड़ता है कि कितनी डिग्री में वो कार हमको भेजनी है, कितनी स्पीड में आएगी। तो उसका एक इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है कि हमको उसका स्पीड सेलेक्ट करनी पड़ती है कि यही स्पीड पे आओगे तो इतनी गाड़ी यहाँ पे आके यहाँ गिरने वाली है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों का क्रू होता है। अगर गाड़ी, अगर स्टंट मैन ने जरा भी स्पीड में लेके आया, अगर 40 की स्पीड बोलिए 50 चलेगी तो गाड़ी और आगे आ जाती है। तो उसमें लोगों की जान का खतरा होता है, कैमरे पे खतरा होता है, तो वो सब अप्लाई करना पड़ता है हमको हर टेक के पहले। और उसके लिए एक रिहर्सल्स होती हैं, तो हम लोग उसके लिए 1 हफ्ता रिहर्सल करते हैं हर चीज़ का। कोई भी शॉट हम लोग बड़ा करने से पहले एक्टर्स के साथ, हमारे साथ, स्टंटमैन के साथ सारा क्रू होता है, क्या चीज़ सेफ है क्या नहीं है। तो हम उस चीज़ के लिए पूरा 1 हफ्ते पहले प्रिपेयर करते हैं हर चीज़ को। और उसमें रोप्स का बहुत काम होता है, जो रोप से गाड़ी हम पलटी करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को गैस भरना, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है और गैस कितनी भरनी होती है, तो वो सारा कैलकुलेशन उस इंजीनियरिंग में करना पड़ता है। बहुत सारी मशीनें बनती हैं, उस मशीन से हम इंसानों को छोड़ते हैं, तो वो बहुत सारी हाई लेवल की मशीन्स बनाते हैं हम। तो वो भी एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है मशीन बनाने का। जैसे इंजीनियर्स मशीन बनाते हैं, तो उसी तरह से हम अपना एक डिज़ाइन करते हैं उस मशीन को बनाने के लिए। हाइड्रोलिक मशीन बनती है कई बार, और कोई पंप मशीन होती है जो खींचने वाली होती है, ताकि हमको फोर्स चाहिए गाड़ी को खींचने के लिए, तो वो मशीन हमको बनानी पड़ती है। सो देयर इज लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स। तो ये सब हमको करना पड़ता है इंजीनियरिंग, तो उसके बिना तो हम अचीव नहीं कर सकते कोई भी चीज़। उसके लिए कैमराज होते हैं, हमको गाड़ी पे प्लेस करने पड़ते हैं,
उस गाड़ी को भगाना पड़ता है उतनी स्पीड से। तो वो एक जब तक वो इंजीनियरिंग प्रोसेस ना हो कैमरे पे भी और उस व्हीकल पे, तो वो शॉट्स जो आप देखते हो और मजा आता है स्क्रीन पे, ओ फक ये क्या हो गया। Yeah. Right, There's a sir. lot of engineering mind behind it, so it's nice, every day what we do is all learning process, and we put the doctor process also, engineering process, pilot process, all the Right, sir. aeronautical process we put in this, because उसमें एक तो जेट प्रोसेस हम लोग उसमें लगाते हैं, किस चीज के अंदर कितना स्पीड चाहिए हमको, तो वो सारी चीजें आती हैं, उसको हमको कम ज्यादा रोज करना पड़ता है। तो उसको करते करते हमको 1 हफ्ता 2 हफ्ता कभी कभी महीना लग जाता है। तो जैसे मैं मूवी कर रहा हूँ पिपा 1971 वॉर के ऊपर है, जो टैंक बैटल हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का बांग्लादेश को बचाने के लिए। Right, sir. तो वो भी मैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हम करने वाले हैं। तो उसमें भी बहुत सारी टेक्निकली हम लोगों ने टैंक्स बनाए हैं, डमी टैंक्स, जिसमें हम लोगों ने 2 व्हील को 4 व्हील कन्वर्ट किया है। सॉल इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो उसमें उसका बूम बनाया टैंक का, उसमें से जो स्पार्क निकलेंगे, शेल्स घुसेंगे, ब्लास्ट होगा। तो एवरीथिंग इज वेरी डेंजरस, सो आई Yeah. होप कुछ अच्छा हो। Definitely, we look forward for it, sir. And Thank you. in fact, Dr. Atre, who is coordinating with you, is the moderator of the session. He himself a doctorate in physics. Sir. Oh, superb. Nice meeting you all, sir. It's a great pleasure. But we will like to open this session for students once. So there are Okay. certain queries the students can put up. Yeah, sir. No problem. Yes. जैसे यहाँ पे अभी शिवम शर्मा पूछ रहे हैं कि हैव यू डन कार स्टंट कोर्सेज आल्सो, क्या स्पेशलाइज्ड स्टंट होते हैं कार स्टंट्स के लिए अलग से व्हीकल से रिलेटेड, और आपने से कुछ किया हुआ है? बच्चे की एक क्वेरी है यहाँ पे। या सर, कार स्टंट्स के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं और उसमें काफी खतरे वाला काम होता है। जी 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 कार बिल्कुल। को पलटी करना, उसके अंदर इंसान बैठा हुआ है, ओहो बहुत ही मुश्किल वाला एक दौर होता है वो, जिस समय हम लोग उस चीज को फिल्म कर रहे होते हैं, तो सारी सेफ्टीज के साथ, सारी मेजर्स के साथ। उसके लिए जो लोग बाहर स्टंट्स करते हैं कार पे, वो बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि कार कभी भी पलटी हो जाती है। उसके लिए लोग अंदर से उस कार को केजिंग करते हैं सारा, मोटे पाइप के साथ, 10 mm के पाइप के साथ। उसमें एक्रेलिक शीट्स होती है मोटी मोटे पाइप्स रखते हैं, ताकि अगर कार जब पलटी होती है तो उसमें बैठे हुए इंसान को कुछ हो ना। तो वैसे एक हादसा हुआ था, मैं शेयर करना चाहूंगा। वो बहुत ही पुराने जमाने में हुआ था ये हादसा, एक स्टंटमैन के साथ, क्योंकि तभी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी और इतना कुछ था नहीं। तो एक जंप था उन प्लेटफॉर्म से, तो गाड़ी जैसे ही जंप हुई ना तो थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो वो लैंडिंग स्टंटमैन के साइड ही हो गई, राइट साइड में। उसमें से एक जो डोर का लोहे का पाइप है वो टूट गया, उसके सर में घुस गया, तो वो ऑन द स्पॉट डेड हो गया था। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं, क्योंकि तभी इतना एक्शन में डेवलपमेंट नहीं थी, और किसी भी चीज में डेवलपमेंट नहीं थी। अगर आप कोई भी फील्ड ले लो, अगर रॉकेट बना देते तो उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन आज की डेट में सारी इतनी चीजें एडवांस हो गई हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि सारा कुछ सेफ हो गया है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी डे बाय डे ट्रायल एंड एरर करते करते सब कुछ ठीक हो गया है। तो आज एक्टर्स को भी हम बिठा के वो सीन कर सकते हैं, अगर वो काफी ज्यादा डेंजरस ना हो। तो काफी एक्टर्स आज अपने सीन्स खुद करते हैं, एक्शन खुद करते हैं, क्योंकि आजकल रोप्स हैं, केबल्स हैं, तो दे आर ऑल सेफ, कहीं से भी जंप लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जंप लगाते हैं। So that's it. एक और सवाल है संपूर्ण चौकसी की तरफ से, अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करें कि हमारा प्रोफेशन स्ट्रीम बदलना चाहते हैं? मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करें, कैसे इस बात पे उनको भरोसा दिलाएं कि भाई मैं अपनी फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ? ओके। क्योंकि आपने खुद ने बताया कि फिल्मों में जाने का जो करियर होता है, जितनी अनसर्टेनिटी होती है, जनरली पेरेंट्स को एक इनसिक्योरिटी रहती है, तो ऐसी हालत में कैसे कन्विंस करें? And sir, one more thing. Yeah, please. One more Mom, thing. dad What is the importance of education in that, sir? Very important. Yes. To convince the mom dad. नहीं, उसके साथ अपने पैशन को कैरी करने के साथ एजुकेशन का भी इम्पोर्टेंस कितना है? Formal education. Education is must, and I want to say to all students, please complete your education. Without that, you are nothing in any field, because you must know what is the idea behind this. If you come without education, you don't know what is happening with you. So you must educate it in every field to understand. It's an international process in everything right now. So it's not that कि हम पान की दुकान खोल के बैठ के पान बेच रहे हैं.
ये अभी वैसा रहा नहीं कि हम आ गए। पहले कोई अनपढ़ एक्टर आ जाते थे, अनपढ़ लोग आ जाते थे, चलो एक्टर बन गए, लेकिन आज की डेट में ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है उस चीज को, क्योंकि आज अगर एजुकेशन नहीं है तो लोग अवॉइड करते हैं आपको, और सेट पे भी आ गए तो आपको वे ऑफ टॉकिंग, इफ यू डोंट नो द इंग्लिश, हाउ टू स्पीक, द पीपल जस्ट अवॉइड इट, नो कि अरे यार किसको ले आए, दे फील लाइक इट, जस्ट कम ऑन लेट्स गो फॉर द अनदर गाय, बिकॉज़ देयर लॉट ऑफ ऑप्शन इन नाउअडेज, द पॉपुलेशन इज ग्रोन सो मच, या एक से एक लोग बढ़ के आ रहे हैं, तो अपने आप को इस तरह से बनाओ कि लोग ये ना पूछे कि आप में कमी क्या है, वो कमी नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, और सामने वाला पर्सन ये बोलना चाहिए वो कौन था यार जो अभी आगे गया। सो पर्सनालिटी यू शुड हैव टू बिल्ड योरसेल्फ लाइक दिस। बस सब बच्चों को यही कहूंगा, प्लीज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आप अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट कीजिए, अगर किसी भी फील्ड में जाना है एटलीस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, जो कि आपको वो आइडिया देगी आगे बढ़ने के लिए, आपको समझ देगी, क्योंकि ये एजुकेशन ऐसी चीज है, सबको लगता है कि नहीं यार हम तो ऐसे ही चले जाएंगे तो कुछ भी कर लेंगे। आज बिजनेस है, बिजनेस मैनेजमेंट क्यों कोर्स कराते हैं, ताकि आप बिजनेस को बारीकी से समझ सकें। आज लोग अनपढ़ लोग बिजनेस में पैसे डालते हैं और नुकसान होता है उनका बहुत सारा। जी जी। एक बहुत मजेदार सवाल आया है विक्रम साहब। सिमरन स्टूडेंट है हमारी, पूछना चाहते हैं, आर देयर स्टंट वुमेन आल्सो इन दिस फील्ड? हाउ ओपन दिस स्टंट वुमेन? Yeah, there's a lot of women also in this in stunt field also. So they did martial arts and everything. They do stunts and with the great safeties. So आप लोग, वही है मेरा प्रोसेस कि आप लोगों को मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा। अगर लड़कियों को भी अगर इंटरेस्ट है, क्योंकि वो लोग, कई लोग होती हैं जो स्पोर्ट्स में होती हैं, लड़कियां काफ़ी एक्टिव होती हैं, तो हम उन लड़कियों को बुलाते हैं और उनको सिखाते हैं, उनको स्टंट्स वूमन बनाते हैं। तो उनके मॉम डैडी के लिए ऐसा कोई हार्म नहीं होता है, हम लोग उनको सब चीज़ बताते हैं कि क्या क्या सेफ्टी होती है, तो आपकी बेटी एकदम सेफ रहेगी। तो आजकल सेफ्टी मेजर ज़्यादा है, अगर आपको काम आता है तो, अगर आपको काम ही नहीं आता हम आपसे काम कराएंगे और कुछ भी लग गया, चोट लग गई, तो दैट्स द डिफरेंट थिंग। तो आपको हर चीज़ के लिए वो सीखना पड़ेगा। तो कम से कम 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है लड़कियों की। हम उनको मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करते हैं, कैसे गिरना है, पढ़ना है, कैसे किक मारनी है, घूमना है, हर चीज़। तो उसके बाद वो लड़की एकदम सेफ महसूस करती है, उसके बाद हम उससे स्टंट्स कराते हैं। तो ऑल द केबल वर्क्स जो भी होता है, हम केबल पे उनको सारी चीज ट्रेनिंग करते हैं, उनके बाद ही हम लड़कियों को एक्शन में डालते हैं, ना कि लड़की लड़के को भी। सेम, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। तो आपको उतनी फिजिकल एक्टिविटीज रखनी पड़ेगी, क्योंकि लड़कियां बहुत सी नाजुक सी होती हैं, तो उनको स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथ लाना, तो वो कम से कम नहीं तो 2 साल का प्रोसेस होता है। तो वो आपको, इसलिए मैं कहता हूँ सपोर्ट कि आप अपनी एक्सरसाइज और आपकी बॉडी को ऐसे रखिए कि आप किसी भी फील्ड में एक्टिव रहें। कई लोग होते हैं ऑफिस में बैठ जाते हैं ऐसे, अरे यार सीट मिल गई, चलो अपना काम करो, घर चले आओ। तो बहुत सारी बीमारियां भी आप में आ जाती हैं एक एज पे आके, क्योंकि आप इस पॉल्यूशन वाले जो एरिया में हम रहते हैं इस इंडिया में, अगर आप 30 क्रॉस करो, उसके बाद सब बहुत सारी प्रॉब्लम में चालू हो जाती हैं। तो आपको अपने आप को फिट रखने के लिए ही, भले ही आप कहीं पे भी कुछ मत करो, लेकिन फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। और इस फील्ड में आना है तो उसकी एक ट्रेनिंग सेक्शन होती है, वो आपको कंप्लीट करना होता है, देन ओनली यू कैन डू इट। मेरे मॉम डैड को मैंने ऐसे कन्विंस किया था, क्योंकि मैं हर चीज में आगे था। तो मेरी मॉम मुझे देखती थी कि ये मार्शल आर्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आता है, तो या आई नोस कि ही विल बी सेफ। देन ओनली आई जस्ट गॉट द परमिशन फ्रॉम मॉम डैड एंड ही सेड कि या ओके यू कैन डू इट, यू कैन गो अहेड विद दिस प्रोफेशन। तो आप जी सौरभ पूछते हैं, आपने किस फिल्म में सबसे पहली बार स्टंट किया? कौन सी आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने खुद में स्टंट किया? आई थिंक चक दे इंडिया शायद आपने बताया था। चक दे इंडिया में तो मैंने एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टंट भी था। जी जी। मेरी पहली पिक्चर जो थी उसके अंदर मैंने किया था काम, वेलकम बैक थी। बहुत सारी, मैं भूल गया कौन सी पिक्चर थी मेरी स्टंट में, लेकिन मैंने शाहरुख के लिए ओम शांति ओम, वो सब में स्टंट डबल किया था। जो उड़ के जाता है जब वो आग लगती है क्लाइमेक्स के अंदर, तो वो मेरी प्रोसेस स्टार्ट ऑफ लाइफ था एक्शन का। तो उसके बाद से मैं आज तक एक्शन से जुड़ा हुआ हूँ, और लोग मुझे रोल भी देते, ऑफर करते, लेकिन आज डेट नहीं मेरे पास रोल करने के लिए। वेरी नाइस। तो और भी कोई सवाल है तो जल्दी से हम ले सकते हैं, और फिर जी या आई थिंक दिवेश आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी प्लीज। No sir, there are students, any student who would like to ask the question, sir, because sir's schedule is very busy and he has given us time. टेक्स्ट के क्वेश्चन तो आई थिंक मोर और लेस हमने एड्रेस कर लिए हैं, और भी कुछ है तो वी कैन टेक इट क्विकली।
शॉर्ट ट्रैक थोड़ा सा सुना ही दिया बीच में। आप क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, जो टेक्स्ट बॉक्स में जो क्वेश्चन थे वो तो हमने काफी एड्रेस कर लिए, और भी कुछ पूछना है तो वी कैन टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। या The final question, if Yeah. anyone of you are having question, you can put up your question in text box. आई थिंक विनायक एक पूछ रहे हैं यहाँ पे, हाउ टू गेट कंसिस्टेंसी इन एनी वर्क वी डू इन ऑर्डर टू अटेन आवर एम। या कंसिस्टेंसी, आई थिंक इसका जवाब तो दे चुके हैं कि आपको इस सवाल का जवाब शायद दिया जा चुका है। क्या वापस रिपीट करेंगे? जी, हाउ टू गेट कंसिस्टेंसी इन एनी वर्क वी डू इन ऑर्डर टू अटेन आवर एम। या कंसिस्टेंसी लाने के लिए सर वही मैं आप लोगों को कहूंगा कि किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी अगर आपको लानी है तो वो दिमाग से लेके दिल तक वो एक ही चीज होनी चाहिए आपके दिमाग में कि मुझे अगर आपको आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो वो दिमाग में डालना पड़ेगा कि मेरा 3 साल का प्रोसेस है, तो मुझे इसके अंदर ही मुझे इसमें ऐसी अचीवमेंट पानी है कि और किसी ने नहीं पानी है जी, तो ही उसमें वो लगा होगा, नहीं आपको एटीकेटी लगेगी बाद में। अगर आप रोज सुबह उठेंगे, जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी मैं कहता हूँ, बहुत लोग होते हैं खाली ऐसे ही सो जाते हैं, बोले हम पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है पढ़ाई करते हो आप, लेकिन वो फ्रेशनेस जो होती है बॉडी के अंदर लाना, वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करना, वो होती है सुबह से। अगर आप सुबह वाला काम ही स्टार्ट नहीं करोगे प्रॉपरली तो आपका शाम तक काम ही प्रॉपरली नहीं होगा। अब 10 उठोगे तो वो आपके 4 घंटे वेस्ट हो गए। वो जो 4 घंटे हैं दिन के स्टार्ट के, भगवान ने भी कहा है कि जो मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा पहला प्रणाम सूर्य को होता है, तो उससे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आज हम उस सूर्य से बहुत सारी चीजें बना चुके हैं। यस, तो उस चीज को लोग लाइटली लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। तो वो आप उठो, वो धूप लो, वो आपको दिमाग में इतनी ताजगी देती है, आपकी बॉडी को बहुत ही फ्रेश रखती है। जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, आज भी मैं आया हूँ तो मैं 5 बजे उठ के अपना काम स्टार्ट करता हूँ, चाहे कोई भी हो। अगर मुझे कोई लिखना है मेरे सीन्स के लिए तो मैं 5 बजे उठ के ही करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपना वर्क स्टार्ट करता हूँ। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि मुझे ये काम करना है दिन भर में, पूरे दिन भर में, आज मुझे इतने 2 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके 2 घंटे मेरी क्लास है, उसके बाद में 2 घंटा मेरी जिम है, उसके बाद फिर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं अपनी मॉम को लेके जा रहा हूँ बाहर, तो वो सारा एक प्लान करना पड़ता है लाइफ में। जी जी बिल्कुल। जो प्लान करते नहीं है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, और जो प्लान करते हैं वो रोज एकदम इजी लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा कल का काम ही नहीं बचा है, तो वो आगे की सोचते हैं। अगर कल का काम ही अगर आप छूट गया तो आप वो कल के काम पे भी ध्यान देते हैं और आज के काम पे भी ध्यान देंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका लाइफ में कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का। अगर आपका जो काम आज है, तो मेरे डैड ने मुझे कहा था, बेटा कल करो सो आज, आज करो सो अब। तो वो तो मुहावरे तो आजकल सभी बोलते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, अगर वो आप लोग नहीं करोगे तो वो कंसिस्टेंसी आप में आएगी नहीं। अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि अगर आपने आज का काम कल पे छोड़ दिया तो वो जिंदगी भर फिर वही रह जाता है। फिर आपके पास जो लिमिटेड सोर्स होता है वही आपके हाथ में आता है। फिर आप सोचते हो मुझे बनना वो है, फिर वो वहां तक पहुंचने तक फिर वो कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको बनना वो है तो प्लीज मैं कहूंगा आप लोगों को, सबको, कि आप अपना दिमाग जिस चीज में लगा रहे हो उसी चीज में लगाइए। आजकल यंगस्टर्स जो हैं ज्यादातर हम गर्लफ्रेंड्स में लगाते हैं और बाकी का बाद में रखते हैं, वहां भी लगाइए, लेकिन प्लीज आपका काम जो होता है, घर परिवार होता है, आपके मॉम है, डैड है, बहुत ही एक्सपेक्टेशन होती है उन लोगों की आप लोगों को लेकर के कि हमारा फ्यूचर है आप, और हम लोगों को आप संभालोगे। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप मॉम डैड को कैसे संभालोगे? आपका पैसे नहीं है तो आगे की उनकी फैमिली में जो बीमारियां होती हैं, फिर वो आप उनको बचाने के लिए वो पैसे चाहिए होते हैं। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो वो सारी फ्यूचर प्रॉब्लम्स आपको हमेशा जिंदगी भर लेके डूब जाएगी। तो आप कभी अपने आप को कमजोर ना समझे। कमजोरी तभी नहीं आएगी जब आप अपना काम प्रॉपर करोगे, कमजोरी तभी आती है जब आप अपना काम प्रॉपर नहीं करोगे। तो प्लीज आप लोग अपना काम जो है, अपने माँ बाप को जितना इम्पोर्टेंस देते हो उतने काम को भी दीजिए, माँ बाप को भी दीजिए, अपने घर परिवार को दीजिए। वो सारा काम टाइम टू टाइम कीजिए तो आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन कभी मैंने हार नहीं मानी है। मैं हर अपना काम सुबह उठकर ही करता था, आज तक करता हूँ। तो भगवान ने मुझे वो दिया है, क्योंकि आपके पास वो कला है, प्लीज उसको यूज कीजिए, ऐसे मत छोड़िए। हर एक के अंदर एक कला होती है, लेकिन वो यूज नहीं करता है तो वो दब जाती है कहीं। तो प्लीज ये कंसिस्टेंसी आप लोग अपनी लाइफ में रखिए, तो देखिए क्या आप में चेंजेस आएंगे। हर बड़े लोग को देख के लोग यही कहते हैं कि टाटा इतना सुबह क्यों उठता है, अंबानी इतना सुबह क्यों उठता है, लेकिन वो उठता है तभी आज वहां पर है।
ये एक्चुअली हमारे इंजीनियरिंग के तबके में बच्चों में खास तौर पे ये एक गलतफहमी है कि सारे प्रोडक्टिव काम रात को 4 बजे सोने के बाद होते हैं, जबकि आप कह रहे हैं सुबह हर अच्छा जो सक्सेसफुल इंसान है सुबह अर्ली राइजर होते हैं। लेकिन पता नहीं अभी की जनरेशन में एक गलतफहमी है कि सब रात को देर तक जाग रहे हैं तो बड़ा प्रोडक्टिव काम हो रहा है। आई थिंक यू आर राइट पर्सन टू ब्रेक दिस मिथ। एक्चुअली ये तो एक गलतफहमी है ये एक तरह से। करेक्ट सर, दिन दिया है आदमी को जगाने के लिए, रात दी है सुलाने के लिए। सीधी सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। वो बॉडी हमको खुद ब खुद बोल देती है कि बस मेरे टाइम हो गया अब सोने का, बिल्कुल और बिल्कुल टाइम हो गया अब जगने का। थैंक यू इट वाज रियली नाइस। विक्रम साहब, आपका आखिरी का मशवरा मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट जरूर लेंगे कि नेचर ने यदि आपको सोने और उठने के लिए मुकम्मल वक्त बनाया हुआ है तो शायद कुछ सोच के ही बनाया हुआ है, क्योंकि देखिए कुदरत से ऊपर तो हम है नहीं, आपने कोई भी हो, कुदरत सबसे ऊपर है। तो बहुत अच्छा लगा आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इट वाज रियली वंडरफुल टू इंटरेक्ट सच ए यंग एंड डायनामिक इंडिविजुअल लाइक यू। ऑफ कोर्स जी हम तो फिजिक्स वाले हैं, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए बस, और जी। बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद तो काम नहीं करेगा, बड़े लोग का आशीर्वाद काम करेगा। कभी मौका लगे तो हमारे कैंपस में जरूर पधारिएगा। विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू। जरूर सर, डेफिनेटली विद लॉट ऑफ थिंग्स विल। तो सारे लोगों की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। Thank you, sir. एंड सी यू सून। Yeah. प्लीज मुझे बहुत फोन्स आते हैं मुझे, सॉरी प्लीज पड़ता हूँ फोन को। थैंक यू सो मच सर एंड सी यू सून। प्लीज मुझे वापस अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। अगर कुछ अच्छा मैंने बोला है, गलत बोला है तो प्लीज सॉरी। किसी को प्लीज कोचिंग तो सॉरी। Absolutely. It was wonderful. Thanks a lot, sir. Thanks a lot, थैंक यू Vikram. सो मच सर, थैंक यू सो Nice to मच। meet you, sir. Thank you. Bye bye. बाय। Nice to meet you, sir. Thank you so much guys. See you, take care. Thank you, sir. One. Nice to meet you, sir. Yeah, same here. Nice to meet you, sir.